Hello everyone, this is Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. Today I am going to discuss some interview question on heat transfer. This is my 6th episode of interview question series. So till now, if you are not subscribed to my channel, subscribe it. Otherwise you may miss out the notification of the upcoming videos. So let's start. Before that, one important disclaimer is that I have mentioned the PDF link of the question with the solution in the description box. So don't forget to check it out and save it for the future purpose. So let's start with the first question for the interview, that is based upon the dimensionless group. So the first question is, name the dimensionless group important in the heat transfer. So as we all know that the dimensionless groups are majorly or play main important role in the chemical engineering. So it is used in the many subjects like heat transfer, mass transfer and fluids. So here I am going to discuss about the dimensionless group which is used in the heat transfer. So let's start, and I am going to first describe you about the Fourier's number, and it is it can be written as k theta upon rho Cp L square, or basically it is the ratio of rate of heat transfer by conduction to rate of energy stored in the system. बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये रेशियो है हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन टू द रेट ऑफ एनर्जी स्टोर इन दी सिस्टम. बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको नोट डाउन करके नहीं दिखाया है यहाँ पे फॉर्मूला, लेकिन आप मेरी बात को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और इसको लिख सकते हैं के थीटा अपॉन रो सी पी म्यू रो सी पी एल स्क्वायर से. ठीक है. नेक्स्ट डायमेंशनलेस नंबर हो जाता है प्रेंटल नंबर, and it is the ratio of momentum diffusibility means mu and the thermal diffusibility, momentum diffusibility to the thermal diffusibility, and it is represented by Cp mu by K. In this, it is a material property. Actually the Prandtl number is the material property और ये डिपेंड कर रही है फिजिकल कंडीशंस पे, टेम्परेचर और प्रेशर दैट अ मटेरियल इज हेल्ड एट. किस टेम्परेचर और प्रेशर पे मटेरियल रखा गया है, ना कि सिस्टम के कंडीशन पे. ठीक है. किस टेम्परेचर कंडीशन पे मटेरियल है, और ये नहीं देखा जा रहा है कि सिस्टम किस कंडीशन पे है. ठीक है. तो ये मटेरियल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है और हम इसको जानते हैं Cp बाय म्यू से, Cp म्यू बाय K से. ठीक है. नेक्स्ट नंबर आ जाता है पैंकलेट नंबर, जो कि है मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेनॉल्ड नंबर टू प्रेंटल नंबर. इट इज रिटन एज dV rho Cp upon K, and it is the convective transport to diffusive transport. ये एक convective transport to diffusive transport के रेशियो से रिप्रेजेंट किया जाता है पैकलेट नंबर. तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ये रेनॉल्ड नंबर और प्रेंटल नंबर का मल्टीपल है, और इसका मैथमेटिकल फॉर्म है dV rho Cp upon K. नेक्स्ट नंबर आ जाता है नसेट नंबर, and it is the ratio of convective heat transfer to conductive heat transfer in the fluid. Convective, it is the ratio of, बहुत ध्यान से सुनिएगा, convective heat transfer to conductive heat transfer in the fluid perpendicular to the flow direction. ठीक है. and it is written as Hd upon K. Okay, and here we Nusselt number convey how important actually Nusselt number conveys how important convection is as compared to the conduction. ये बता रहा है कि कन्वेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है एज कंपेयर टू कंडक्शन के. तभी हम लिख रहे हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर टू कंडक्टिव हीट ट्रांसफर इन द फ्लूइड परपेंडिकुलर टू द फ्लो डायरेक्शन. और
It involves the heat transfer coefficient and characteristic length, both of which depend upon the type of system one in it use. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ग्रॉसऑफ नंबर. ग्रॉसऑफ नंबर is the ratio of buoyancy force to the viscous force acting on the fluid. बहुत सिंपल है, it is the ratio of buoyancy force to the viscous force acting on the fluid, and it is written as L cube rho square beta g delta t upon mu square. Here the L is the characteristic length and it is generally used in the model natural convection. ये जनरली यूज होता है मॉडल नेचुरल कन्वेक्शन में. नेक्स्ट इज रिले नंबर. रिले नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रॉसऑफ नंबर एंड द प्रेंटल नंबर. आप ये बहुत नोटिस करेंगे कि प्रेंटल नंबर और रेनॉल्ड नंबर कॉमनली सब में मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है. तो रिले नंबर में क्या, ये ग्रॉसऑफ के साथ प्रेंटल नंबर मल्टीप्लाई होके हमें रिले नंबर प्रोवाइड कर रहा है, और इसको लिख सकते हैं हम लोग L क्यूब रो स्क्वायर जी बीटा सी पी डेल्टा टी अपॉन म्यू अल्फा. It is the quantity that govern natural convection heat transfer. Okay, next आ जाता है हमारे पास Grosov Boyd number, which is the ratio of internal thermal resistance to the external thermal resistance. It is the Boyd number is the ratio of internal thermal resistance to the external thermal resistance, and it is written as HL by K. It represents the relative importance of thermal resistance within the solid body. Okay, next is Stental number. Stental number is the ratio of Nusselt to product of Reynolds to Prandtl number means, and it is mathematically written as H upon Cp V rho. It measures the ratio of the heat transfer into the fluid to the thermal capacity of the fluid and used in the forced convection. So these are the few important dimensionless number used in the heat transfer. You have to go through it and learn it properly. Okay, next question is about the importance of temperature measuring device. So let's talk about it. That is, name the important type of temperature measuring device. Temperature measuring device, important type of temperature measuring device. So we have 3 to 4 type of temperature measuring device which is majorly used in the industry. That is, first one is thermocouple, second is resistant temperature detector, which is in short written as RTDS, and the third one is thermistor and integrated circuit temperature sensor, and other temperature sensing device like liquid in a gas thermometer, glass thermometer, biometric strip thermometer, pressure thermometer, pyrometer, ये सारी चीज़ें हो गए. तो ये बेसिकली इंडस्ट्री में यूज़ होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम इन्हीं टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस के ऊपर से. दैट इज़ व्हाट इज़ थर्मोकपल एंड हाउ इट इज़ वर्क. सो बेसिकली थर्मोकपल सीबैक इफेक्ट पे काम करता है. जो सीबैक इफेक्ट बताता है हमें, इट स्टेट दैट द वोल्टेज प्रोड्यूस्ड इन द थर्मोकपल इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर बिटवीन द टू जंक्शन इज प्रोपोर्शनल. जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है थर्मोकपल में वो प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर बिटवीन द टू जंक्शंस के बराबर. So basically thermocouple consists essentially a two strip or a wire made up of different metals and joined at one end. ठीक है. फिर change in temperature at the junction includes the change in electromotive force. अगर हम उस जंक्शन पे जो दो तरीके के स्ट्रिप्स हमने यूज़ किए हैं डिफरेंट मेटल के, जो एक ही पॉइंट पे ज्वाइन किए हैं, और जो हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं उस जंक्शन पे, तो क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है, चेंज इन ईएमएफ प्रोड्यूस होता है बिटवीन द अदर एंड. As the temperature goes up, this output EMF of the thermocouple rises through not necessarily linearly. Temperature range thermocouple का क्या होगा, -70 to 2300 डिग्री सेंटीग्रेड. Okay, and thermocouple is basically causes a electric current to flow in the attached circuit when subjected to change in temperature.
and the voltage generated is depend upon the temperature difference between the measuring and the reference junction. Okay, this is all about the thermocouple. Basically thermocouple is work on the Seebeck effect, and it consists of two strips made up of different metal and joined at one end, change the temperature at that junction induce a change in electromotive force between the other end. So it is very simple to understand. So come to the next question, that is what is thermopile. ठीक है, तो बेसिकली thermopile is a number of thermocouple. A thermopile is a number of thermocouples are connected in series. Number of thermocouple connected in series to increase the sensitivity and the accuracy by increasing the output voltage. बेसिकली थर्मोकपल को अगर सीरीज में हम जोड़ देते हैं तो उससे क्या होगा, हम बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसकी सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी इंक्रीज कर रहे हैं. किस लिए? वोल्टेज को व्हेन मेजर लो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए जब हम लो टेम्परेचर डिफरेंस पे हैं. ठीक है, तो डेफिनेशंस ऐसे है कि थर्मोपाइल इज द नंबर ऑफ थर्मोकपल्स connected in a series to increase the sensitivity and the accuracy by increasing the output voltage when measuring low temperature difference. ठीक है, और each of the reference junction in the thermopile is returned to the common reference temperature. ठीक, तो ये बात हो गई इसके बारे में थर्मोपाइल्स की. नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मिस्टर्स के बारे में. थर्मिस्टर्स क्या होते हैं? अब थर्मिस्टर्स बेसिकली thermally sensitive resistor. It is a thermally sensitive resistor whose primary function is to exhibit a change in electrical resistance within a change in temperature. तो थर्मिस्टर का जो एक thermally sensitive रजिस्टर है जिसका प्राइमरी फंक्शन क्या है कि चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में अगर चेंज आता है टेम्परेचर चेंज से वो नोटिस करने का. ठीक है, तो थर्मिस्टर इज अ थर्मली सेंसिटिव रजिस्टर whose primary function is to exhibit the change in electrical resistance with change in temperature. क्या टेम्परेचर चेंज करने से जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में चेंज आता है उसको नापने में. ठीक है, बेसिकली इट इज़ मेड ऑफ कंप्रेस्ड एंड सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना रहता है थर्मिस्टर. और मेटल यूज बेसिकली इसमें हो जाते हैं निकल, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, इस टाइप से. और बाय चेंजिंग द ऑक्साइड प्रोपोर्शन बेसिक रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मिस्टर कैन बी वेरीड. ओके, तो थर्मिस्टर आर based on the resistance change in the ceramic semiconductor. The resistance drop non-linearly with temperature rising. ठीक है, तो हमें ये एक बेसिक सा पता चल गया है थर्मिस्टर के बारे में. बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में और हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हमें इंटरव्यू में बस छोटा सा डेफिनेशन ही बताना होता है, तो ज़्यादा नहीं बताना होता है. तो बेसिकली आप बता सकते हैं थर्मिस्टर इज द थर्मली सेंसिटिव रजिस्टर हुज प्राइमरी फंक्शन इज टू एग्जिबिट अ चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस विथ अ चेंज इन टेम्परेचर. और ये किस किस मेटल से बना होता है वो सब चीज़ें आप इसके बारे में बता सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पायरोमीटर. दैट इज व्हाट इज पायरोमीटर. पायरोमीटर हम लोग बोल रहे हैं, तो वो क्या चीज़ है पायरोमीटर. तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पायरोमीटर क्या है. तो एक सेकेंड. सो पायरोमीटर इज अ बेसिकली अ डिवाइस दैट मेजर टेम्परेचर. Pyrometer is the device basically which measure the temperature by sensing the heat radiated from the hot body through a fixed lens that focus the heat energy onto the thermopile. Basically क्या है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेज़र कर लेता है. किससे? बाय सेंस से. जहाँ से हीट रेडिएट हो रही हो वहाँ बिना टच किए पर्टिकुलर फिक्स लेंस से फोकस करके वो वहाँ से
हीट एनर्जी को सेंस कर लेता है विद द हेल्प ऑफ थर्मोपाइल्स। और थर्मोपाइल्स क्या होते हैं, सीरीज ऑफ थर्मोकपल्स अटैच होते हैं, तो उसको थर्मोपाइल्स कहते हैं। तो उसके हेल्प से पायरोमीटर जो है टेम्परेचर को दूर से ही सेंस कर लेता है बाय हीट रेडिएंट। सो इट्स डेफिनेशन इज दैट pyrometer are device that measure temperature by sensing the heat radiated from the hot body through a fixed lens that focus the heat energy onto the thermopile। और जो बेसिकली दीज आर नॉन कॉन्टैक्टिंग डिवाइस, ये मैंने बताया कि दूर से ही पता कर लेता है, मतलब कॉन्टैक्ट में नहीं जाने की ज़रूरत होती है इसको। दीज आर नॉन कॉन्टैक्टिंग डिवाइस। फर्नेस टेम्परेचर फॉर इंस्टेंट, हम जैसे फर्नेस टेम्परेचर हम नॉर्मली मेज़र करते हैं, वो स्मॉल होल्स जो फर्नेस में अवेलेबल होते हैं उधर से ही हमें सेंस करके पता चल जाता है, ठीक है। तो द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द पायरोमीटर कैन बी फिक्स्ड एंड रेडिएशन शुड बी फिल द फील्ड ओवर द व्यू ऑफ सेंसर। तो ये चीज़ें इसके पायरोमीटर के बारे में आ गई। अब बात करते हैं, अब हम जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो कंडक्शन की, ये तो मेजरिंग डिवाइस के बारे में हो गया, टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस के बारे में। अब हम कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की तरफ जाएंगे। तो धीरे धीरे तो कंडक्शन से हम बेसिकली कई क्वेश्चन होते हैं कि मैकेनिज्म बताओ हीट कंडक्शन का, वो ये सारी चीज़ें कॉमन हैं तो मैंने उसको कंसीडर नहीं किया। फोरियर्स लॉ डिफाइन करो तो ये हो गया। तो इसी तरीके से एज अ फोरियर्स लॉ डिफाइन, जैसे कि फोरियर्स लॉ डिफाइन बताया गया है, उसी तरीके से डिफाइन सिमिलर लॉ लाइक मोमेंटम ट्रांसफ़र क्या होगा, मास ट्रांसफ़र क्या होगा, मास ट्रांसफ़र के में कौन सा लॉ गवर्न करेगा, वैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र में कौन सा लॉ गवर्न करेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मोमेंटम ट्रांसफ़र में। तो मोमेंटम ट्रांसफ़र में न्यूटन्स लॉ गवर्न करेगा, बिकॉज मोमेंटम ट्रांसफ़र इज डिस्क्राइब बाय द न्यूटन्स लॉ। दैट क्या न्यूटन्स लॉ में क्या रिलेट करते हैं, शेयर स्ट्रेस टू विस्कस ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम रिलेट करते हैं। तो रिलेट करने पे कौन से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमें मिलता है, म्यू, जिसका नाम है विस्कोसिटी, ठीक है। तो मोमेंटम ट्रांसफर हमें पता चल गया। अब मास ट्रांसफर की बात करते हैं। तो मास ट्रांसफर में कौन सा लॉ गवर्न करेगा, फिक्स लॉ दैट रिलेट्स द फ्लक्स ऑफ कंपोनेंट टू द कंपोजिट ग्रेडियंट। फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है टू द कंपोजिट ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या आती है, डिफ्यूजिविटी। और डिफ्यूजिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, -DAB से, ठीक है। ये एक डिफ्यूजिबिलिटी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है विच मेजर द, वो क्या करता है, एबिलिटी ऑफ हीट ट्रांसफर, एबिलिटी ऑफ ट्रांसफर ऑफ मास हमें बताता है, ठीक है। और जो मास ट्रांसफर इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन में होता है, तो इसीलिए वी यूज नेगेटिव साइंस, ठीक है, साइन हेयर -DAB, मतलब before diffusibility constant we use negative signs because the mass transfer is in the direction of decreasing concentration, okay। next हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर में हम ओम्स लॉ को एक्सप्रेस करेंगे, जिसका एक्सप्रेशन होता है I = V/R। और यहाँ I जो है वो करंट है एम्पियर में, V वोल्टेज है एंड R रेजिस्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें 3 लॉ हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब हमें पता चल गया कंडक्शन, ये सब बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अब हम बात करते हैं, एक चीज़ आती है इसमें कंपोजिट वॉल, जो कंडक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। कि न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप कंपोजिट वॉल के बारे में बहुत मतलब सारे मटेरियल्स जो होंगे वो कंपोजिट वॉल में होंगे। तो वाई, सबसे पहले तो व्हाट इज कंपोजिट वॉल एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू लेयर द डिफरेंट मटेरियल फॉर इंसुलेशन। कंपोजिट वॉल क्या होते हैं और इसको डिफरेंट इंसुलेशन की क्या ज़रूरत होती है। तो बेसिकली जो कंपोजिट वॉल होती है, एक फ्लैट सरफेस है जो कि डिफरेंट मटेरियल सीरीज़ में जोड़ के, और लेकिन थिकनेस सबकी एक होती है, वो बनाया जाता है, उसको कंपोजिट वॉल कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे फर्नेस वॉल आर द एग्जाम्पल, उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स जो होती है, वो रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स जो हमें होती है वो इनर वॉल में हम उसको इंक्लूड करते हैं। और अदर इंसुलेटिंग मटेरियल सच एज, हम दूसरे मटेरियल कौन से यूज़ करते हैं, जैसे
मैग्नीशिया हो गया और स्लैग वुल हो गया फॉर द आउटर वॉल यूज़ करते हैं इंसुलेशन के लिए। अब क्या होता है कि फर्नेस में जो टेम्परेचर होते हैं वो बहुत हाई होता है एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड इन्वायरमेंट, सो रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर मटेरियल फॉर द इनर वॉल दैट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू सर्व एज अ स्ट्रक्चरल वॉल, जो कि एक वॉल की तरह भी काम करे और जो उसको इंसुलेट भी करे, जहाँ उसकी एनर्जी को इंसुलेट भी करें। सो द एसिड एंड ब्रिक बेसिक ब्रिक्स आर यूजुअली और कौन सी होगी, रिफ्रैक्टिव ब्रिक, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इन्वायरमेंट दे कम इन कॉन्टैक्ट एंड दैट इज एसिडिक, अल्काइल और एटमॉस्फेरिक। ठीक है, फिर आउटर जो वॉल होते हैं वो सर्व मोर इंसुलेशन, हमें वॉल को सर्व करते हैं, सो दैट टू सर्व मच लोअर टेम्परेचर आउटसाइड। तो आउटर इंसुलेशन इज प्रोवाइडेड बाय दिस, कौन से किससे प्रोवाइड कर रहे हैं हम, स्लैग वुड से और मैग्नीशिया से और सिमिलर जो इंसुलेटिंग मटेरियल होंगे। तो बेसिकली कंपोजिट वॉल जो मैंने बताया आपको, ये रीज़न पता चल गया कि हम क्यों इंसुलेशन करते हैं, कैसे इंसुलेशन करते हैं और कंपोजिट वॉल क्या होते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना आज के लिए काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे एक दिन में 7-8 से क्वेश्चन, जो आपको भी ओवरलोड ना हो और मेरे लिए भी ओवरलोड ना हो, इसलिए आज के लिए काफ़ी है। अगर आपको मेरा लेक्चर और इंटरव्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।